discussing about the retail promotion, right? What is the meaning of promotion? Yes, online class. Who is going to tell me what is the meaning of promotion? Raise your hand. Yes, Sonam. Ma'am, spreading information about product, service. Okay, anyone else who is going to tell me what is the meaning of promotion? Promotion क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रैटेजी होता है कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का। How? सेल इंक्रीज करके। सेल इंक्रीज करके आप प्रमोशन हो जाएगा कि प्रमोशन करने के बाद सेल इंक्रीज होगा। हाँ, ओके। ऑनलाइन क्लास, टेल मी what is the technique, what is the meaning of promotion? Marketing tools use strategy communication. So what is the meaning of promotion? Promotion is the strategy, it is a marketing strategy which is used for communicate with the consumer, influence the consumer and persuade the consumer toward the product. It is a way of providing the information and generate awareness among the consumer about your product. Always remember, in products we are including both goods and services. याद रखिएगा हमेशा. So in the retail promotion जो है हम लोगों ने पढ़ा था about the advertisement. I guess we already completed. What is the meaning of advertisement? What are the various ways of the advertisement we completed? What is public relation we completed? Now the next point is personal selling. I guess this was the last topic in the class. Personal selling क्या होता है? What is the meaning of personal selling? In the earlier time, we saw that multiple people, they come door to door for selling the product. So door to door selling is also the part of personal selling. In the personal selling, what is the main element? That is interaction. What is the main element of communication? Is interaction, and the communication is always done. Communication कैसे होगा? हमेशा two ways. Exactly. समझ में आई बात? In that, the customer executive or the salesperson will stand in front of the customer. Either the face-to-face interaction can be possible, and the telephonic interaction is also possible, right? But the way who is going to convince the customer to purchase the product? Customer executive or sales representative. So in the personal selling, what is the main element? The human beings, the interaction, right? So in the personal selling, when there is a बोल सकते हैं ना कि confront करना, एक दूसरे को interact करते हैं, तो this is the more effective way of selling. ज्यादा effective है. इसमें क्यों effective है? First of all, we can demonstrate about the product. Whatever we are selling, we can represent that product in front of you. True. वो product जो हम बेच रहे हैं उसको हम दिखा सकते हैं, how to use, how to handle the product. We can tell every features of product as well. So we can demonstrate the product. So that is one of the effective way of communication, है ना? अगर न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट आता है और उस प्रोडक्ट को देख तो हम सकते हैं, उस प्रोडक्ट की पिक्चर को we can see, but how to use it we cannot able to analyze, right? So in short, in the personal selling, there is a face-to-face interaction, either there is a telephonic interaction. ठीक है? The complaint, the queries, the questions can be asked at same time. जब आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं उसी समय you can raise multiple question about the product. You will get at the time answer. Second thing, that in personal selling we are able to analyze the success rate properly. किस सेंस में? पर्सनल सेलिंग में आपके सामने कौन होता है? कस्टमर एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है. जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करता है प्रोडक्ट के बारे में, एडवाइस देता है प्रोडक्ट के बारे में, है ना? अगर पर्टिकुलरली कस्टमर कन्विंस नहीं होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको समझ नहीं आता है, वो डायलेमा में होता है, कंफ्यूजन में होता है, तो वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा. सो उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि इसका एक्शन यानी कस्टमर का एक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा. आई बात समझ में? एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पे देखते हैं, एट द टाइम तो नहीं चले जाते दौड़ के सामान लेने. नो, वेरी लेस प्रोडक्ट वी कैन, फॉर वेरी लेस प्रोडक्ट वी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग. बहुत ही कम प्रोडक्ट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? लेकिन पर्सनल सेलिंग में तुरंत से हमें रिजल्ट भी मिल जाता है कि पर्टिकुलरली जो कस्टमर विजिट कर रहा है या कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा.
बट द सेल्स जो आपका पर्सनल सेलिंग है, दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉइज, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. So for this purpose we require trained employees. हमें इसके लिए कौन से एम्प्लॉइज की जरूरत है? ट्रेन्ड एम्प्लॉइज की जरूरत है, जो कन्विंस करना जाने, कस्टमर को हैंडल करना जाने, ठीक है, जो प्रोफेशनल हो, क्लियर है, और जो आपके सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करे. तो बेसिकली ट्रेन्ड पर्सन चाहिए जो उस वर्क के लिए, यानी कि कन्विंसिंग और हैंडलिंग कस्टमर के लिए वो प्रॉपर सुटेबल हो, है ना. अब जो पर्सन सेलिंग का नहीं है, अगर उसको सेल्स में आप डाल दोगे, मे बी इट माइट बी पॉसिबल कि वो पर्सन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सके, परसुएड नहीं कर सके कस्टमर को, है ना. सो इफेक्टिव एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसमें? पर्सनल सेलिंग में. ठीक है, पर्सनल सेलिंग में पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी होता है वो किस चीज पे होता है? ओरल कम्युनिकेशन पे. किस पे होता है? ओरल कम्युनिकेशन पे. यानी कि जो कन्विंस करने का तरीका होगा वो कैसे होगा? वो ओरली बोल बोल के आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा, बताएगा, है ना. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार स्टोर पे जाइएगा तो आपको खुद से बोलते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कि सर आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ज्यादा इसका रिव्यू अच्छा आया है, या कुछ भी एडवाइस देते हैं. तो ओरली दे ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर. ठीक है, पर्सनल सेलिंग में हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सेलर है, यानी कि जो एम्प्लॉइज है, जो कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट बट दे आर कन्वेइंग द इमेज ऑफ द कंपनी. यानी कि सिर्फ वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, वो इमेज को भी दिखा रहे हैं आपके कंपनी का. इफ द customer service, if the sales representative is not able to perform their duty well, that is going to detroit the image of the company as well. आई बात समझ में? यानी कि अगर अच्छे से आपके साथ डील नहीं करेगा कंपनी के जो भी एम्प्लॉइज हैं, तो आप पूरी कंपनी के लिए सोचोगे कि क्या सिस्टम है यहाँ पर. डिट्रॉइट होगा, कम होगा, खराब होगा उसका इमेज. ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका लेवल, मतलब जो पर्सनल सेलिंग है, ये आपके इमेज को कन्वे करता है, और कौन से टाइप के प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. आप हर एक प्रोडक्ट के लिए पर्सनल सेलिंग अप्रोच यूज नहीं कर सकते हो, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट यूज एक्सट्रीम पर्सनल सेलिंग इन द रेस्टोरेंट. नो, बट कस्टमर सर्विस इज पॉसिबल. बट कस्टमर जो बोलते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, वहां पर आप पर्सनल सेलिंग नहीं कर सकते हो. पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादातर आप नोटिस कीजिएगा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए यूज होता है. यू नो व्हाई? बिकॉज समहाउ द पीपल आर लेस नॉलेजेबल फॉर द टेक्निकल प्रोडक्ट. अरे बस समझ में, जैसे कि हमें नहीं पता है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो इसका प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर इसका जो कैमरा, ऐसे खैर लैपटॉप में कैमरा चेक नहीं किया जाता, मोबाइल में किया जाता है वो, लेकिन जो भी इसके फीचर्स हैं, है ना, रैम, रोम, जो भी है इसमें, वो सारी चीजें हम पूछते किससे हैं? वहां के एग्जीक्यूटिव से. Either we can search on the internet. So in short, we can say that the personal selling is more suitable when you are selling the complex product or the technical product. ठीक है, और कुछ और भी प्रोडक्ट है जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आप पर्सनल सेलिंग को यूज कर सकते हो. ठीक है, शॉपिंग प्रोडक्ट में और थोड़ा सा स्पेशलिटी और लग्जरियस प्रोडक्ट में आपका पर्सनल सेलिंग ज्यादा वर्क करता है. आगे बात समझ में? अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल सेलिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल सेलिंग का? अच्छा, इससे ये तो पर्सनल सेलिंग का जो अप्रोच है ये ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा. कहां पर मिलेगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही लिटिल है. ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट नहीं लगाएंगे. ठीक है, अनऑर्गेनाइज में. चलिए, नेक्स्ट वन इज, और एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि इंडिया पेट्रोल एंड डीजल जो आपके पंप हैं, पेट्रोल पंप वगैरह जो है, फिलिंग स्टेशन जिसको हम कहते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स स्टाफ. ये पूरा का पूरा किस चीज पे डिपेंडेंट है? सेल्स स्टाफ पे. मतलब हाईली दे आर डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स इन शॉर्ट. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब यहाँ पर अगर एम्प्लॉय, सेल्स स्टाफ ने अगर कुछ भी बोल सकते हैं निगेटिव कुछ भी अगर हुआ, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द overall image of the company, जो मैंने पहले ही बता दिया. Now, what is the main objective of personal selling? What is the main objective of personal selling? So first, I just want to ask a very important question from you all.
that do you think that while watching YouTube videos, I'm normally asking कि अगर आप YouTube वीडियोस देख रहे होते हैं, जैसे कोई नॉलेज का, कोई सब्जेक्ट का या कोई भी टॉपिक के ऊपर आपने YouTube आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो डू यू थिंक दैट इज मोर इफेक्टिव एज कंपैरिजन टू द क्लास इंटरेक्शन? कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? Which one? Online class? I just want to know that if you are watching YouTube videos, ठीक है, YouTube में अगर आप कोई नॉलेज का कोई भी टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि दैट इज मोर इफेक्टिव और जो आप क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हो वो ज्यादा इफेक्टिव है? Which one? मैम क्लास में जो ज्यादा सही रहेगा ना। क्लास में ज्यादा सही रहेगा। एनीवन एल्स? क्या लगता है तुम लोगों को क्या बेटर होगा? Yes, ma'am. Offline. Offline. The same situation is with the personal selling. The first point is elaborating the same concept. To persuade customers to make purchase. Customer को persuade करना. See, advertisement is also doing the same thing. Advertisement जो हो रहा है वो भी persuade करता है, influence करता है, customer को knowledge देता है. But when someone is speaking, when someone is interacting one by one, यानी एक person से properly interact कर रहा है, that persuasion is very much different from the advertisement. ठीक है, बिकॉज उनके लिए एक दो लोग टारगेट नहीं होते, उनके लिए पूरा का पूरा बहुत सारे कस्टमर्स टारगेट होते हैं ना। सो बहुत ही इफेक्टिव है आपका पर्सनल सेलिंग। ये परसुएड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को टू मेक परचेजेस, खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदे। वो कोशिश करता है कि जो भी कस्टमर विजिट कर रहे हैं वो परचेज करके ही जाए, है ना। Second one is to stimulate sales of the impulse items or the product related to customers' basic purchasing. तो यानी कि वो स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है कौन से आइटम्स का सेल? इम्पल्स आइटम्स का, वैसे आइटम जिसके बारे में हमने प्लान नहीं किया है। मींस दोज आइटम व्हिच वी नेवर प्लान टू परचेज, but when we go to the particular retail store, when I see that product, और एकदम से because of the persuasion I just purchase that product. ठीक है, तो समटाइम इम्पल्स परचेज इज डन बिकॉज ऑफ आवर 5 सेंसेस। याद रखिएगा, इम्पल्स परचेज हमेशा 5 सेंसेस के साथ चलता है। किसके साथ चलता है? 5 सेंसेस के साथ चलता है। हमें कुछ देख करके अच्छा लगा, है ना, कुछ स्मेल अच्छा है खाने पीने का, परफ्यूम का, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं इम्पल्स करता है कि हम खरीद ले वो प्रोडक्ट, राइट। सो इन शॉर्ट, जो भी वैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने पहले डिसाइड नहीं किया, वो भी हमें स्टिमुलेट करता है पर्सनल सेलिंग की, भाई प्रोडक्ट को खरीदो। प्री प्लान जो प्रोडक्ट नहीं होते हैं, अनप्लान्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनको खरीदने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ गए, इसने कुछ खरीदा, आपको कुछ नहीं खरीदना है, बट कस्टमर जो एग्जीक्यूटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपको बोला मैम आप ये देखिए, ये भी अच्छा है। सो इट माइट बी पॉसिबल, दिस कैन बी हैपन। Next one is to complete the transactions with the customer. Transactions with the customer, it means all the processes. First they visit, then they look the products, then they compare the products, then finally they purchase the product, they make the payment. Everything for complete the transaction के लिए personal selling is very important, because in any point of time in the process of purchasing the product, it might be possible that you are in a confusion manner, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिलिंग में दिक्कत हो रही है, पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, साइज अगर कुछ क्लोथ्स वगैरह ले रहे हो साइज में दिक्कत है, लैपटॉप का मॉडल अवेलेबल नहीं है जो ले रहे हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो फॉर दैट द पर्सनल सेलिंग इज द बेस्ट एंड इफेक्टिव टूल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू गेट द फीडबैक फॉर द कंपनी डिसीजन मेकर। ठीक है, यानी कंपनी जो है उसके लिए फीडबैक लेना, दैट इज आल्सो डन थ्रू द पर्सनल सेलिंग, राइट। लाइक कस्टमर एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू आस्क अबाउट द फीडबैक, आइदर दे विल प्रोवाइड यू वन फॉर्म, एक फॉर्म आता है फीडबैक का, दे विल गिव यू दैट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड देन यू हैव टू सबमिट इट इन पॉइंट ऑफ सेल्स या फिर बिलिंग पॉइंट। ठीक है, वहीं पर आपको जमा करना होता है। नेक्स्ट वन इज टू improve and maintain the customer satisfaction. The customer satisfaction, when the customer is satisfied, when the expectation, whatever he or she is expected from the company, they are getting that product only. यानी जो आपका expectation है product से related, for example, if I am purchasing a fridge, what kind of expectation I have if I invested 1 lakh rupees? अगर मैंने 1 लाख रुपए का कोई फ्रिज ले लिया तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी हाई होगा, बिकॉज आई एम पेइंग हाई अमाउंट, राइट। सो एक्सपेक्टेशन अगर मेरा फुलफिल होता है तभी मैं सेटिस्फाई हूं, राइट। सो इन शॉर्ट, टू प्रोवाइड द, या कह सकते हैं मेंटेन करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द पर्सनल सेलिंग।
because they are going to assure you that whatever you are purchasing, that is the best product. ऐसा बोलते हैं ना कि जो आप खरीद रहे बहुत अच्छा है, इसका बहुत डिमांड है, कुछ भी करके कन्विंस करते हैं. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इंप्रूव करना एंड मेंटेन करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए पर्सनल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कस्टमर इज नॉट ओनली गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट बट दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द कस्टमर सर्विस एज वेल. Clear? Or to provide the adequate level of customer service. I guess customer service को elaborate करने की जरूरत नहीं है ना? Or to create the awareness of items. Yes, what is the awareness of items? Like through personal selling, the sales representative, they are going to tell you that ma'am, this new product is arrived in our shop store. है ना? Now you can also purchase these products. Earlier we are not selling that, but nowadays we are also selling these products. So the way you can basically aware the consumer about the new arrival and the new product. ठीक है? So for increasing the awareness of the items, और ये यहाँ पर तो खैर इन्होंने ये लिखा है वेब, मेल, टेली मार्केटिंग. एक चीज याद रखिएगा, पर्सनल सेलिंग में टेली मार्केटिंग भी आएगा. मैंने बोला था ना फोन से इंटरेक्शन होना, जहां पर आपका 1-by-1 इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर वहां से कंपनी की तरफ से आपको डायरेक्ट मेल आता हो, आपसे इंटरेक्शन हो रहा हो, आपके लिए मैसेज आ रहा हो. व्हाट्सएप मैसेजेस का भी आजकल टाइम है, कंपनीज व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, 1-by-1 दे आर टॉकिंग टू द कस्टमर्स. सो दैट आल्सो कम्स अंडर द पर्सनल सेलिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो दे कैन इंक्रीज द अवेयरनेस बाय इन शॉप में, मतलब इन स्टोर भी पर्सनल सेलिंग यूजफुल है, डोर टू डोर भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेल करके टेली मार्केटिंग के थ्रू भी उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. आगे बात समझ में. लेकिन सोशल मीडिया पर्सनल सेलिंग में नहीं आएगा, याद रखिएगा, बिकॉज सोशल मीडिया में एक साथ हम बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, पब्लिकली हम वो मैसेज जो है वो डालते हैं, है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट में होता है. तो आई गेस सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. ये शायद मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इसीलिए लास्ट टॉपिक जो भी रहता है क्लास का मैं रिवीजन करते हुए चलती हूँ कि वो कम से कम याद रहे. हाँ, importance form of merchandise where selling skill may be different. तो यहाँ पर आई थिंक इसको elaborate करने का जरूरत नहीं है. किसी को कोई डाउट है? कौन से पॉइंट? बेटा कस्टमाइज प्रोडक्ट, जैसे जो प्रोडक्ट को हम डिजाइन करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, जैसे बुटीक वगैरह के में जो क्लोथ्स होते हैं, ऐसे कंसेप्ट में आपको पर्सनल सेलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू शो दैट व्हाटएवर इज सेलिंग इन द मार्केट वी आर बेसिकली सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, तो कंपटीशन के लिए पर्सनल सेलिंग बहुत यूजफुल टूल है. अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर पर्सनली किसी को परसुएड कर रहे हो या फिर अपने कस्टमर्स को बोल रहे हो ये प्रोडक्ट खरीदिए, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये यूजफुल टूल होगा पर्सनल सेलिंग. तो इन शॉर्ट वी कैन से कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए परसीव्ड हाई रिस्क ऑफ परचेज, जैसे कि जो बहुत महंगा प्रोडक्ट है या फिर जिसको यूज करने के बाद कोई रिस्क है, तो वैसे प्रोडक्ट में भी पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि दे आर द पर्सन हु इज गोइंग टू कन्विंस यू, दे आर बेसिकली ट्राई कि आप कंफर्टेबल हो जाए उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, है ना. जैसे कई बार हम लोग भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं कॉस्मेटिक्स का, तो वी आर आस्किंग सो मेनी टाइम्स अबाउट द प्रोडक्ट. The reason is because that is going to affect the skin. True. So जहां पर रिस्क आपके परचेज में इंक्लूड हो जाएगा, वहां भी पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट ये मतलब ये टाइप ऑफ मर्केंडाइज है जहां पर्सनल सेलिंग यूजफुल है. दीज आर द टाइप्स ऑफ मर्केंडाइज वेयर पर्सनल सेलिंग इज यूजफुल. नेक्स्ट वन इज मर्केंडाइज विथ हाई प्राइस. Obviously, if you are investing a very high amount, for example, if you are purchasing car and we are giving 10 lakh rupees for that, so that is not the small amount. So definitely in that situation as well, the personal selling is required. Someone who is going to guide us in at that time when we are purchasing the product, right? The next one is complex and technical product. The product which is basically very much technical, and for using that we require special knowledge, or at least बेसिक नॉलेज तो हमें उसमें होना चाहिए. जैसे लैपटॉप के लिए बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता है ज्यादा, आपके एसी में नॉलेज ज्यादा नहीं होता है ना. ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है. इंस्टॉलेशन का नॉलेज हम लोग को अभी भी नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द इंस्टॉलेशन वर्क. ट्रू. सो इन शॉर्ट, द प्रोडक्ट विच इज टेक्निकल एंड विच इज डिफिकल्ट टू यूज, in that product personal selling is required. In those product whose price is always variable which is not fixed, for example clothes, jewelry ऐसा चीज है, गोल्ड ज्वेलरी, उसका प्राइस एक्सट्रीम लेवल पे फ्लेक्सिबल है. अभी तो कुछ टाइम से डाटा इन द नॉर्मल सेम वैल्यू पे चल रहा है, लेकिन पहले वो एकदम से एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल हो गया. पता होगा कॉन्सेप्ट, आई गेस सबको.
कि जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है तो शेयर मार्केट डूबता है, कम होता है, और शेयर मार्केट ऊपर हुआ तो गोल्ड का रेट डिक्रीज होता है ना। सो इन शॉर्ट, जिसका भी प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल प्राइसिंग है। और अच्छा है ये, इसमें आपका वेरिएबल भी होगा, इसमें आपका यहाँ भी ज्वेलरी भी हो सकता है, यहाँ पर आपका कुछ हॉलीडेज भी हो सकता है, हॉलीडे वगैरह पता नहीं क्यों इन्होंने दिया है, लाइक टूर वगैरह का जो प्राइस होता है, जैसे कोविड के टाइम पे टूर का प्राइस एकदम से लो हो गया। और वेरिएबल प्राइसिंग में ना आपका रेलवे टिकट्स वगैरह भी आ सकता है, बहुत सारे रेलवे टिकट्स है जिनका प्राइस डायनेमिक है, राजधानी का प्राइस इज डायनेमिक, फ्लाइट का प्राइस इज डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस सेम नहीं रहना, बदलते रहना, चेंज होते रहना अकॉर्डिंग टू द सर्विस। 4 दिन बाद जाना है तो 4 दिन पहले अगर टिकट लोगे तो महंगा पड़ेगा, 2 महीने पहले लोगे तो सस्ता पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्टेटस, ज्वेलरी भी आ गया इसमें, मैंने इसमें बता दिया था। अनब्रांडेड गुड्स, जो प्रोडक्ट जो है जो अनब्रांडेड है, जिसका ज्यादा नाम नहीं सुना, तो उस सिचुएशन में वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट दे विल इलैबोरेट कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, टेबल आइटम, तो खरीदते हैं। ये ज्यादातर देखना एफएमसीजी गुड्स में होता है, बिस्किट वगैरह देखना इसमें बहुत ज्यादा होता है। चलिए आई गेस यहां तक क्लियर हो गया। नाउ द सेलिंग प्रोसेस, व्हाट इज सेलिंग प्रोसेस? बिफोर सेलिंग प्रोसेस आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग। क्या होता है सेलिंग? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग? पर्सनल सेलिंग, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? ये सॉरी, सेलिंग, ओनली सेलिंग, नॉट पर्सनल सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्या होता है सेलिंग? कस्टमर के नीड को समझ के, जान के उसको। दैट इज नॉट सेलिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग का मतलब होता है व्हेन वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कि बस प्रोडक्ट को किसी भी तरह, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको सेल करते जाओ। क्या करते जाओ? सेल करो, एग्रेसिवली सेल करो, और सेल करने के लिए जितना हो सके उसके लिए टेक्निक यूज करो। इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपका सेल्स प्रमोशन आता है, याद होगा आप लोगों को सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव लिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, रिटेलर के द्वारा, और कई बार कंपनी रिटेलर को भी देती है, सेल्स प्रमोशन करती है, और साथ साथ में दे आर आल्सो गिविंग इट टू द किसको देती है? कस्टमर को देती है और रिटेलर को भी देती है। याद रखिएगा कि द कंपनी इज प्रोवाइडिंग द सेल्स, जो सेल्स प्रमोशन कॉन्सेप्ट है, सेल्स प्रमोशन, ये कई बार वो देती है रिटेलर को भी, या फिर आपके मीडिएटर को, एंड फिर कस्टमर को भी। पता होगा रिटेलर को जब देती है सेल्स प्रमोशन कंपनी, तो दैट इज अ पुश स्ट्रैटेजी, ये पढ़ा है। एंड कस्टमर को जब दे रही है तो दैट इज अ पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी क्या होता है? पुश स्ट्रैटेजी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर जब सेल्स प्रमोशन इंसेंटिव कंपनी दे रही है, किसको? रिटेलर को देगी, तो रिटेलर जो है वो किसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा? कस्टमर को। अब यहां पर वो सेल्स प्रमोशन रिटेलर को किस टाइप का दे सकती है? मार्जिन दे देगी, हाई मार्जिन, या फिर फ्री प्रोडक्ट दे देगी, फ्री प्रोडक्ट। मैम सेल भी तो लगा सकती है ना? हाँ बिल्कुल, क्रेडिट फैसिलिटी दे सकती है, डिस्काउंट दे सकती है। इस तरीके की चीजें जब वो प्रोडक्ट में देगी तो रिटेलर क्या करेगा? अपने आप ही कस्टमर को कन्विंस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये प्रोडक्ट सेल होगा तो इसको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। तो दैट इज नोन एज पुश स्ट्रैटेजी। पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देगा, है ना। सो दैट इज पुश स्ट्रैटेजी। बट इन द सेम स्टेज when the sales promotion technique is used directly for the customers, यानी कि रिटेलर को नहीं दे रही है, कस्टमर को डायरेक्टली सेल्स प्रमोशन दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, फ्री गिफ्ट्स दे रही है, 20% एक्स्ट्रा दे रही है, डिस्काउंट दे रहा है, फ्री गिफ्ट्स दे रहा है, कुछ भी अगर डायरेक्टली कस्टमर को कंपनी दे रही है, कौन दे रही है? कंपनी दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहते हैं पुल स्ट्रैटेजी, कि खुद ब खुद कस्टमर जाके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लास सबको समझ आया? पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी? यस मैम। पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया? सो द सेम थिंग, ये जो सिचुएशन है यही हम बात करने वाले हैं आपकी सेल्स प्रमोशन में, कि सेल्स प्रमोशन का क्या रोल है
किसके लिए? रिटेलर के लिए। उससे पहले यहाँ पर एक सेलिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि प्रोडक्ट को हम कैसे सेल कर सकते हैं कस्टमर को, हाउ वी कैन सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं अगर वो ट्रेंड है, जो सक्सेसफुल रिटेलर हैं वो हमेशा ट्रेन रहते हैं, ठीक है, मोटिवेटेड रहते हैं, और वो हमेशा कस्टमर को भी मोटिवेट करते हैं जब कोई भी स्टोर में उनके आता है तो, ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेल्स स्टाफ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर का है, इसीलिए सेल्स स्टाफ जो है वो सबसे पहले वही पर्सन है जो किससे मिलेंगे? डायरेक्टली आप कंपनी के सीईओ से तो मिलेंगे नहीं, हम लोग सेल्स स्टाफ से ही मिलते हैं। अब यहाँ पर उनका वही कन्विंस करना एंड ऑल, लेकिन वो किस तरीके से प्रोसेस में चलेगा, व्हाट इज द प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो सेलिंग प्रोसेस का पहला पॉइंट है अप्रोचिंग द कस्टमर, यानी कस्टमर को क्या करना है? अप्रोच करना है। अप्रोच करना मतलब कि बताना, अप्रोच करना, ट्राई करना, उनसे बात करना, अप्रोच, ठीक है। Greeting the customer when they entered in the store, just try to greet them, ठीक है, नमस्ते, नमस्कार, good morning, good afternoon, guess how I can help you, may I help you, any question you can ask, greet करो। उसके बाद फिर क्वेश्चन करो कि what do you need sir, what I can show you, please tell me, these kind of things you have to ask। The first one is that try to approach the customer. Once they entered in the store, just greet the customer, and after that try to find out that what is the reason behind the visit, मतलब क्या रीजन है उनके स्टोर पे आने का, उनका क्या नीड है और उनको कौन सा प्रोडक्ट की जरूरत है, उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। Once they understand about the customer's need, then they can present and demonstrate the merchandise according to the customer need, ठीक है। सेलिंग प्रोसेस में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये आजकल का सिनेरियो है, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटिंग का। ये आजकल का कॉन्सेप्ट है कि हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि हम रिटेलर की बात कर रहे हैं, रिटेलर आर नॉट द मैन्युफैक्चरर बट दे आर द सेलर, राइट। तो हाउ वी कैन सेल द प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला अप्रोच कस्टमर को करो, ग्रीट करो, फिर कस्टमर के नीड को एनालाइज करो। Once you are done with the analyzing the need of the customer, then try to show those product which can meet the expectation of the customer. जो भी कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करो, यानी दिखाओ। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में समझो कि कोई पर्सन लैपटॉप लेने के लिए गया, ठीक है। तो जैसे ही स्टोर आदित्य विजन में मान लीजिए एंटर किया, क्योंकि आजकल वो एक ऐसा स्टोर है जहां पर मल्टीपल ब्रांड का ऑप्शंस अवेलेबल है। देयर आर मल्टीपल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर भी, जैसे एचपी भी है, डेल भी है, लेकिन आदित्य विजन एंड क्रोमा जिसमें मल्टीपल टाइप ब्रांड के प्रोडक्ट्स रहते हैं, दे आर द बिग रिटेलर्स, ठीक है। तो आपने विजिट किया, उनसे पूछा गया कि आपको जो चाहिए लैपटॉप वो क्या, मतलब वो उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, सारा मुझे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है या कुछ भी रिलेटेड काम है, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट को बताई, एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट शोइंग द लैपटॉप ऑफ हाई प्रोसेसिंग, जिसमें हाई प्रोसेसर हो, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया हमने, डेमोन्स्ट्रेशन किया प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। देन दे विल आस्क द क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन? कस्टमर्स, है ना। फिर वो क्वेश्चन तो करेगा, एकदम से प्रोडक्ट को खरीदता है क्या? नहीं, हाँ, बस कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके लिए हम 2 मिनट नहीं सोचते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट, लेस का पैकेट लेने से पहले नहीं सोचते ना, सो दैट इज द कन्वीनियंस प्रोडक्ट, इसलिए डोंट थिंक अबाउट इट। बट हाँ, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट अगर हम पूरा प्लान करके लेना है या कुछ सोचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, लेना है प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कौन करेगा? कस्टमर करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्या प्राइस है, कितना, क्या इसका क्या, वही इसका इंश्योरेंस, वारंटी, गारंटी, जो भी चीजें हैं, दे विल आस्क द क्वेश्चन। उसके बाद फिर आंसर करने के बाद सेल क्लोज, मतलब वही क्लोजिंग द सेल, यानी कि वही प्रोडक्ट सेल हो गया आपका, फिर आपने बिलिंग करा लिया, फाइनली फिर फॉलो अप लेंगे सजेशंस पे, ठीक है। देन वी विल टेक द फीडबैक। सो दीज आर द स्टेजेस, दीज आर द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट in the retail store. Always remember, in the retail store, ठीक है। एक इफेक्टिव पर्सनल इंटरेक्शन, एक सेल्स स्टाफ का एक प्रॉपर ट्रांसलेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इलैबोरेशन अबाउट द प्रोडक्ट, बेनिफिट, कस्टमर्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिल द नीड्स, क्या चाहिए उनको प्रोडक्ट वो समझना। दिस इज अ इफेक्टिव वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इन द रिटेल स्टोर। क्लियर?
चलिए, और ये भी चीज मैं बता दूं कि सेल्स पर्सन को ट्रेंड होना तो चाहिए कि हाँ मुझे प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, एंड दे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, उनको एक चीज हमेशा याद रखना है, क्या कि एवरी कस्टमर इज नॉट सेम, हर एक कस्टमर सेम नहीं होता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर्स आर वेरी, है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था वैरायटी सीकिंग बिहेवियर है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है। टाइप्स ऑफ कस्टमर्स भी अलग अलग हैं, कोई इंपल्स कस्टमर होते हैं, कोई वेंडरिंग कस्टमर होते हैं, कोई लॉयल कस्टमर होते हैं। सो द कस्टमर्स बिहेवियर्स जो है दैट कैन बी चेंज। कुछ कस्टमर बहुत एग्रेसिव होते हैं, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है, सम कस्टमर्स आर पोलाइट, some customers are very much confused. So every customer is different and the way of dealing is also need to be different. मतलब जो डीलिंग का तरीका होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए. We cannot use the same approach of dealing the every customer in the same way. आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है. कुछ कस्टमर्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इनडिसिसिव होते हैं, उनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हालत खराब होती है. आई एम वन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. सो एंड सम पीपल आर वेरी मच रिजिड. उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर ये लेना है तो वही लेंगे, चाहे तुम कितना भी कन्विंस कर दो उसको कि ये ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये ले लो. Somehow in something I am also like the same. We have to deal with the customer in that way only. चलिए, आई गेस क्लियर हो गया होगा. सेलिंग प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. क्लियर है? Yes, ma'am. ऑनलाइन Yes, क्लास. ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो सेल्स प्रमोशन आपका क्या है? आपका सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, इनिशिएटिव है, जो किसके द्वारा लिया जाता है? कंपनी के द्वारा भी लिया जाता है, रिटेलर के द्वारा भी लिया जाता है. कई बार रिटेलर खुद से भी डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स देते हैं. ठीक है. तो सेल्स प्रमोशन जो है ये आपका वही नॉर्मल आपके बोल सकते हैं डिस्काउंट आ गया, इसमें डिस्काउंट हो गया, कूपन्स हो गया, फ्री गिफ्ट्स हो गया, फिर आपके कैशबैक, वो भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है. ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स प्रमोशन का? इंक्रीज द सेल्स इन द शॉर्ट टर्म. यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ एकदम से बहुत सारे ग्राहक कम हो गए, जैसे कोविड के टाइम पे मैंने बताया ना कि आपकी होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, तो दे स्टार्टेड गिविंग अ बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट. तो इन शॉर्ट वी कैन से फॉर इंक्रीजिंग द शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन सेल्स, मतलब शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिस इज द बेटर वे. सेल्स प्रमोशन इज द बेटर वे. ठीक है. सेकेंड है टू मेंटेनिंग द कस्टमर लॉयलिटी, वी कैन गिव द सेल्स डिस्काउंट. अगर हम कई बार लॉयलिटी प्रोग्राम्स भी करवाते हैं कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए जो हमारे लॉयल कस्टमर हैं, तो उसके थ्रू उनकी लॉयलिटी इंक्रीज होती है. सेकेंड. थर्ड वन इज एम्फसाइजिंग द नोवेलिटी. और एक और चीज है कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर प्रमोशन टूल, मतलब बाकी प्रमोशनल टूल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. जैसे कैसे? एडवर्टीजमेंट किया 60% ऑफ फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, तो बाकी टूल के साथ भी हम सेल्स प्रमोशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने देख सकते हो, आप फ्री गिफ्ट्स का दिया हुआ है एट इबोनी, देयर इज अ फ्री गिफ्ट गारंटी. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि देयर इज अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज इन द बिग बाजार, लाइक ऑन वेडनेसडे विद 5 kg शुगर इज फ्री विद दैट, है ना. एंड समहाउ दे आर मैक्स द ये वेस्ट साइड, ये बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं, दे आर यूजिंग दिस. ठीक है. डिस्काउंट एंड ऑफर्स. एडवांटेज क्या है सेल्स प्रमोशन का? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन? अच्छा, सेल्स प्रमोशन का आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स प्रमोशन यूज होगा. प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, स्टॉक को, जो आपके स्टोर में स्टॉक है उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए, क्लियरेंस ऑफ स्टॉक में भी कई बार डिस्काउंट लगा के हम सेल्स प्रमोशन लगा के प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं. ठीक है. हाँ, ब्रांड इक्विटी भी कह सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंटिंग करने के लिए, बाकी प्रमोशनल टूल को इंक्रीज करने के लिए, परसुएड करने के लिए, परसुएशन के लिए भी सेल्स प्रमोशन यूज करते हैं. कंपटीशन के लिए भी, इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वी कैन आल्सो. हाँ, फुटफॉल, वही इंक्रीज, सेल तो इंक्रीज हो गई, फुटफॉल को इंक्रीज करने के लिए, विजिट इंक्रीज करने के लिए. क्लियर हो गया? सो और एडवांटेज क्या क्या है सेल्स प्रमोशन के? व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन? द फर्स्ट वन इज दैट इज अ मोटिवेशनल, और बोल सकते हैं एक एफर्ट है. क्रिएटिविटी के लिए बेटर है, मतलब क्रिएटिविटी के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हो सेल्स को. टारगेट ऑडियंस को इंक्रीज करने के लिए, आपके ब्रांड नेम के लिए भी होगा, और साथ साथ में आपकी प्रॉफिट के लिए भी शॉर्ट रन में. इंप्रूव करना पैट्रनेज ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर,
वैसे कस्टमर जो आपके यहाँ एकदम से आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, या फिर आपके स्टोर को देख के जो एंटर हुए हैं, पैट्रनेज कस्टमर वही होते हैं जिनका फैक्टर होता है आपके स्टोर का लुक देखना या उस तरीके से देखकर इन्फ्लुएंस होकर के वो आते हैं। तो वैसे कस्टमर को भी इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। व्हाट आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये सेल्स प्रमोशन? First thing is that it is for short term. Long term tak we cannot use the sales promotion technique. Second one, sometime it is written that ki like 50% up to 50% discount, and what the people are judging कि up to 50% है यानी 50% की छूट है, but when they जब वो गए उन्होंने क्या देखा कि 50% लिखा है up to का मतलब होता है that is started from the 1% to 50%. So sometimes ये भी confusion create होता है, और जहां लिखा होगा flat 50% it means it is 50% off on every product. So sometimes hidden cost is not basically given, but at the time of billing we can understand that there is some additional hidden cost. So that is even also possible because of the sales promotion I am purchasing the product, and after that I understand कि अरे इसमें तो ये भी cost देना है, ये भी cost देना है ना. So hidden cost lead to confusion. Same situation will be happen with the discount, with extra 50% extra, 20% extra, जो भी चीजें उसमें कई बार हम कंफ्यूज भी आपको कर देते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक. प्राइस अंडरकटिंग, प्राइस कई बार बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, और इसका एक और इफेक्ट होता है लाइक इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. याद रखिएगा ये गिवन नहीं है. कई बार आप इतना ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीदते हो ना कि विदाउट डिस्काउंट यू कांट एबल टू परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम दैट स्टोर. So that is also one of the major impact on the store, retail store. और उसके अलावा there is a significant government rules and regulations. Somehow that is the price is also regulated by government. So government rules and regulations is also there in the case of sales promotion. Okay, what are the various type of schemes in India? So that is given that free in, pack, gifts, उसके बाद प्राइस ऑफ पैक्स, कूपन्स, कॉन्टेस्ट करवा देना. जैसे आपने देखा होगा, याद है हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था वो कॉन्टेस्ट करवाते थे इसमें स्टिकर लगवा के. हाँ, फिर स्वीप स्टेक्स, ठीक है, कंपटीशन बिटवीन द सम बोल सकते हैं कस्टमर्स, स्वीप स्टेक्स सेल्स. उसके अलावा डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करना, स्पेशल इवेंट, सैम्पलिंग. सैम्पलिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? जब कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल करना, वो भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है. And the same thing has happened in my school as well. When I was in my school KV, at that time what happened that the Sona Chandi Chanpras was distributed among all the students. Whole is called school, chota wala size, but the sample size is very small. They cannot able to distribute 1 kg wala na. So they distributed the small, very small, 1 spoon का सिर्फ जो पैकेट था, they just बोल सकते हैं वो distribute किया. So that is also the way because when we tasted, हाँ अच्छा है पहले वाले से, चलो उस समय डाबर बहुत ज्यादा कंपटीशन में था, तो डाबर से बेहतर है ऐसा सोच के फिर बहुत लोगों ने लिया प्रोडक्ट को, है ना. So that is also the part of the sales promotion. So demonstration, like demonstration is something which is related with how you can present the product. ठीक है. Loyalty programs are there. So I am going to elaborate all those points. I am going to elaborate all these points